لاہور پریس کلب میں اقرا کلب کے صدر حامد نواز نے ویکلی درس قرآن کی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں چیئرمین فیصل لہریہ، سیکرٹری شیخ آفتاب، محمد مجیب اللہ، ارشد علی، اندلیب اسد، ندیم الحسن، حبیب چوہان، فاران شاکر، میاں شبیر احمد، فاروق عظیم، واجد مشتاق، سجاد احمد آوان، گل نواز، محمد اشرف، فرزانہ چودھری، میاں عارف نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر حامد نواز نے کہا کہ ہماری تنظیم کا مقصد اسلام کی تبلیغ کرنا نہیں ہے، ہم تو صرف قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسی میں ہماری فلاح و کامیابی ہے۔ جب کسی بھی انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس دنیا میں کوئی بھی میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی نے اللہ اکبر، حضرت عباس، عبداللہ بن عباس ان کے چچا داد بھائی تھے، ان کو ایک دفعہ یہ ایمان والی بات یہ سمجھائی کہ عبداللہ اگر ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے نا تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ تیرے ساتھ، اور اگر ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے، یہ ساری دنیا تیرے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اللہ تیرے ساتھ کھڑا نہ تو پھر تو نہیں پا سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے دل میں، جو سچے ایمان والوں کے دل میں رچ بس جاتی ہے کہ میرا اب کوئی نقصان نہیں کرتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ راضی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ جل شانہ کے محبوب کے ساتھیوں نے پوری دنیا میں جب تک وہ لوگ رہے ہیں، دیکھیں یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ درجے ہیں، جب تک وہ لوگ جو اس مان کے اس حصے پر تھے، اس سطح پر، اس مقام پر تھے، جب تک وہ لوگ رہے ہیں، دنیا نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آ گئی، حکومتیں ان کے سامنے بڑی بڑی حکومتیں، دیکھیں اس زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم کی۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے ایک باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ ایرانی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے کچھ عرصے بعد، وہ مغلوب تھے، تو پھر وہ بھی اللہ نے اس کا بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا کہ بعد میں، لیکن یہ دونوں بڑی طاقتیں مل کے بھی نہتے مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، اور ان نہتے مسلمانوں نے ان دونوں بڑی طاقتوں کو نہ زیر کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے نمبر 1 کانسیپٹ کلیئر کیا گیا ہے، تابوت سکینہ کی طرف سے، جو ادیوگ ہے تابوت سکینہ، جس کو وہ باکس آف سکون سکینہ کہتے تھے، ابھی کہتے ہیں، اس کی تلاش میں اس میں عصا تھا، اس میں حضرت موسیٰ کا، حضرت داؤد کی چیزیں تھیں، حضرت سلمان کی چیزیں تھیں، وہ ایک بخش میں حضرت سلمان نے رکھی ہے، کہ یہ تابوت سکینہ ہے، جب تک یہ ہمارے پاس ہوگا، ہاں ہم دنیا میں حکومت کرتے تھے، ہمیں سکون ہی سکون تھا، جب سے یہ ہے وہ بخش نصر وہ سادہ میرا کرے گا ان شرط انہوں نے سکون کی یہودیاں کے سکون کی شرط یہ ہے کہ تابوت سکینہ انہوں نے ملے گا، پھر وہ 1000 سال حکومت کریں گے، اور مسایہ آئے گا، ایسے حکومت کے اکثر بھی چھوڑ دینا۔ مسلمانوں کا بھی پہلے یہی کانسیپٹ اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ سکون اس وقت چلی گا اللہ نازل کرے اور مومنہ کے اتنے کا، ہر مومن کا سینہ تابوت سکینہ ہے، ہر مومن کا سینہ تابوت سکینہ ہے، اور ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، ایمان ہی ہوتا، یہ تو تقریر تو نہیں ہوتا، کدی بچ جائے کدی گھٹ جائے، دنیا داری پوری نہ ہو تو ایمان گھٹ گیا، دنیا داری پوری ہوئے تو ایمان مل گیا، میں نفع ہو جائے تو میں اللہ واحد ہے، تو جب میں نفع لگا تو یا اللہ کی بتا دعا مانگنا میرا ایمان گھٹ گیا، ایمان مکمل ہوتا ہے عین الیقین کے نال دیکھ کے، ایمان ہوتا ہے سنیا اچھا جی اللہ ہے ٹھیک ہے،
ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਤਜ਼ਲਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ मुतज़ल्ज़ल नहीं होता, जिन्हें रस्ते ही देखे हों। मैं तेरी खोज में तुझसे भी परे जा निकला। वो कभी ਉਹਦਾ ईमान शमान घटता नहीं, और ना नबी का ईमान घटता, ना कभी साहबा का घटिया। अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, मैंने को राजी है। ईमान घटने वगैरह की चीज़ नहीं। हाँ, और मुतशाबिहात नाज़िल कर, मुतशाबिहात होता है कि शुबह हो गए, कोई ऐसी चीज़ जिसे सोचना पवे। अल्लाह कोई ऐसी चीज़ सानू कुरान के जरिए नाज़िल नहीं कर सकता, अल्लाह कीता होना है जी सानू भंबल भूसे पा दे। मुतशाबिहात मैं 7 ज़मीनां अल्लाह का पता, हुण तुसीं भी खोजो, लभो, लभ ले पैन 7 दिन 7 दिन कायनात बना दी है, की है लभो। वो चीज़ां जिहड़ियां मुहिम ने, वो चैलेंज ने अल्लाह वालों कि तुसीं इन्हां नूं लभो। तुसीं ज़मीन का कड्ढिया तो तुसीं अगर ज़मीन के किनारियां तो निकल के जा सकते हो तो चले जाओ, इल्ला सुल्तान तुसीं नहीं जा सकते बगैर ताकत के। हुण सानूं ताकत हासिल करनी चाहिए, ज़मीन तो निकल गया ना। सकीना है हर मोमन का सीना, सकीना है, सकून है, घटदा बढ़दा नहीं। और यह नाज़िल होंदा है, मादी चीज़ नहीं गी, एकदम नहीं नाज़िल होंदा, ग्रैजुअली ਉਹਦੀ ਗੁੱਸਤ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਗੁੱਸਤ, ਉਹਦੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਫਟ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਸਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਜ਼ਲ ਨਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਨ। हज़रत बिलाल की मिसाल दी गई, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी मिसाल है। तत्तियां रेतां ने उत्ते उन्होंने लम्हा पा के मारते सन, कितना सकून जिसम में नहीं होंदा, रूह च होंदा। किन्नी क रूह मुतमइन सी, ਉਹਦਾ जिसम ਨਾਲ तलक ही कोई नहीं। ਉਹਨੇ गल्ला मार ला जिन्ना मार, मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ तलक ही मैंने होंदा ही कुछ नहीं पिया। वो पागल हो गए यार, की बंदा ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ रूह ਦਾ बिलाल रूह का नाम है, आफ्ताब रूह का नाम है, मुजीबुल्लाह रूह का नाम है, जिसम का नाम नहीं है। रूह निकल गया तो होर बन जाए, बन जाए तो जिसम का फर्क हो जाएगा। जिसम रूह तो निकलती है तो नाम मैयत पै जाता, जिसम रूह जो निकलेगी यदा नाम मैयत हो जाता है। नाम नहीं लेना, मैयत चुको जी, मैयत हो जी, मैयत होना, मैयत हो। बिलाल रूह का नाम है, जिसका जिसम में तलक ही कोई नहीं। हर वो मोमन ਜਿਹੜਾ रूह है, ਜਿਹੜਾ जिसम ਨਾਲ तलक नहीं है, ਉਹਦਾ दुनिया ਨਾਲ भी कोई तलक नहीं, ਉਹਦਾ मादी या सैशन ਨਾਲ भी कोई तलक नहीं। वो जो कुछ भी करता है अल्लाह हुक्म के मुताबिक वो ऐसे कर रहा है, कोई इत्मीनान नहीं चाहता। सकीना मिल रही है, सकून है, उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। सकून रूह की ग़िज़ा है। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी सुन के बंदे सकून होता ना, रूह सकून लै रही है, ਸਕੂਨ रूह की ग़िज़ा है, रूह ਨੂੰ ग़िज़ा मिल रही है, तरो ताज़ा है, ਉਹਨੂੰ दुनिया की चीज़ों की जरूरत नहीं है। फिर मुख्तलिफ कराना अल्लाह ने कहा कि तमाम ਜਿਹੜੇ लश्कर ने, रूह ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कुत्ता ने, वो अल्लाह दी है। इस गुमान जिन्हों ने ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ मिलना शुरू हो गया, जितने तो तुम वरंगी बन गए हो, सारिया चीज़ां होनी वो भी कहता जी। पढ़ने का तू मान ना करी, ना आखी मैं पढ़िया। वो सत्तार, वो गफार, सत्तार की कहना बड़ा मता डोल दबी दुध करया। वो सत्तार गफार को आवे, मता डोल दबी दुध करया। दुध कर गया तो पूरा ना तेरी उबाले आने तो मस्त हो, उबालिया च मस्त रहे, वो मस्त रहे, वो मस्त रहेगा, नजूल होता ही रहेगा। एक बार पता लग गया ना मैं की हाँ, वो है माए, उन्हें जिक्र पता नहीं लग सकता अल्लाह का, अल्लाह की जिन्हें जिक्र अपने आप का पता ना। पहले पता कि मैं कौन हाँ, की हाँ, मैं कितों आया, मेरा इस जिसम नाल की तलक है, मेरा इस दुनिया नाल की तलक है। मिट्टी के मैं कदों आया, मिट्टी में कदों रोलिया गया। कि ईमान का ज़्यादा होना और दूसरा है सकीना का नाजिल होना, इन दोनों का ताल्लुक है
वो इंसान की ये जो फैकल्टी ऑफ थॉट है, दिल की जो फैकल्टी है, इसके साथ है। क्यों कि इंसान का ईमान का ताल्लुक भी दिल के साथ है, और इंसान को जो सकीना नाजिल होती है वो भी उसके दिल के ऊपर नाजिल होती है। तो ईमान के बढ़ने और घटने का, जैसे अभी फैसल भाई फरमा रहे थे कि ये एक फिनोमिना मौजूद है मोमिनीन के अंदर, और ईमान बढ़ता उस वक्त है जब हम राह हक पर चलते हुए हमारे सामने मुश्किलात आती हैं और उन मुश्किलात पर हम हावी हो जाते हैं और उस मंजिल में हम कामयाब होते हैं, तो ईमान बढ़ता है इंसान। और अगर हम मुश्किलात से घबरा कर उस मकाम से नीचे हट जाते हैं तो इससे ईमान जो है इसमें कमी आती है। तो ये एक टेस्ट है इंसान के लिए कि उस पर मुश्किल वक्त आया है, और मुश्किलात की 5 किस्में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाई हैं कि अल्लाह ताला आपको भूख में भी आजमाएंगे, अल्लाह ताला आपको जान के खौफ में भी आजमाएंगे, अल्लाह ताला आपको आपके माली नुकसानात में भी आजमाएंगे, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत करोगे, मसलन दीन के मामले में हमें मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़रूर पैदा हो रहा है। तो ये जो कैफियत है इसमें भी अल्लाह ताला हमें आजमाएंगे। और इसके अलावा हमारी जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ जो हमें पहुँचती है लोगों के एतराज़ात से, लोगों के गुफ्तगू से, तो इसमें भी अल्लाह ताला हमें आजमाएंगे। इसमें अगर हम पूरे उतर जाएं तो हमारा ईमान जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये बात बताई जा रही है इसके अंदर। और दूसरी बात है कि सकीना जो नाजिल होती है दिल के अंदर, अच्छा इसमें मैंने तफसीर में पढ़ा है कि उन्होंने ये लिखा है कि जो दुनियावी सहूलियात और आसाइशात है उनका ताल्लुक सकीना किससे है, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है कि ये दुनियावी जो सहूलियात और आसाइशें ये सकीना ये है कि आपको एक चीज़ से हटाया जाता है और आपका इत्मीनान उस पर होता है कि मैं हक़ पर हूँ और मैं सच्चा हूँ और मैं इस पर कायम और दायम रहूँगा। और इसका अदराक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। पिछले एक सूरत मोहम्मद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अच्छा, उस मदद की शक्ल क्या है? अल्लाह फरमा रहा है वसब्बित अक़दामकुम, मैं तुम्हारे अक़दाम को साबित कर दूँगा, मैं तुम्हें साबित कदम बना दूँगा। तो ये सकीना जो है ये साबित कदमी की एक शक्ल है कि इंसान का दिल जो है वो मुतमईन होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक है और इसका यकीनन अच्छा नतीजा बरामद होगा। इसके रास्ते में आने वाली मुश्किलात मुझे इस काम से होगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये समझना और इसको इस तरीके से उसके मुताबिक अपनी शख्सियत को ढालना, अपने रवैये को उसमें इख्तियार करना, ये हमें फ़ायदा पहुँचाएगा।